جی سیما صاحب، یہ لوگ بڑا یہ تحریک لبیک والوں کی آپ نے بات کی، یہ آ رہے ہیں دوبارہ سے کہ جی فرینچ امبیسڈر کو نکال دو، اور یہ وہ جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ یورپین کنٹری سے پہلے ہی تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کا اسلام اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب چائنا جو ہے وہ ایپل والوں سے کہہ کر اور اس میں سے قرآن کی ایپ جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے، ان کی سارے جتنے بھی ان کی موبائلز ہیں یا ایپ جو بھی اپلیکیشنز ان کی آتی ہے، جو گیجٹس آتے ہیں، اس میں سے کہتے ہیں جی یہ قرآن کی اپلیکیشن نکال دو، اور نکال بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب سعودی عرب کے کراؤن پرنس کہتے ہیں کہ جی مجھے تو حدیثوں پہ ہی جو ہے وہ بلیو نہیں ہے، اور بہت سی ایسی ہیں جس کے اوپر شک ہے، اس وقت یہ تحریک لبیک والے نہ تو اور عمران خان سمیت کوئی ان دونوں کنٹریز کو کچھ نہیں کہتا، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا، امبیسڈر نکالنے کی بات نہیں ہوتی، یہ لوگ جا کے وہاں پہ دھرنے نہیں دیتے، اور خان صاحب بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، تو یہ تو ایک طرح کا ڈرامہ ہی لگتا ہے۔ اور ہم نے کہ 75 سال ہمیں مسلمان کرنے میں لگا دیے لوگوں نے۔ میں اپنے گھر میں کتنا مسلمان ہوں میرا اور میرا خدا جانتا ہے۔ آپ کوئی کوالیفائی کر سکتی ہیں مجھے، یا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آرزو اچھی مسلمان ہے یا نہیں؟ ہم 75 سال میں ہم ایک بات بتاؤں، ہماری ترقی نہ کرنے کا ایک بہت بڑا پرابلم، اور ہمارے ہم لوگوں کی جو سوچ ہے نا، وہ we look inward، ہم اندر کی طرف دیکھتے ہیں۔ دنیا نا وہ باہر کی طرف دیکھتی ہے، ہم اندر کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو لک انورڈ ہے نا، وہ دو وجہوں سے۔ ایک تو یہ کہ ہم ایک دوسرے پہ ٹیگ لگاتے رہتے ہیں، تم اچھے مسلمان نہیں ہو اور تم اچھے پاکستانی نہیں ہو، سارا ٹائم لگے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے، تم اے کام کیا ہے نا تم نے، تم اب پاکستانی نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اندر وہ پاکستانیت نہیں ہے جو آپ جو ہے نا وہ دوسرے کے اندر ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں کیونکہ اس طرح کا پاکستانی، تمہیں بھی اس طرح کا پاکستانی ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ہے، ٹی ایل پی والے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم اچھے مسلمان نہیں، وہ مسلمان بنو جو ہم کہتے ہیں۔ مجھے تو سر سیدھی باتیں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی لائف آفٹر ڈیتھ میں، کیونکہ وہ تو سب مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو کچھ انہوں نے بتایا کچھ نہیں ہے، تو آپ لوگ تیاری کریں، حوریں آپ کو ملنی ہے، ہمیں تھوڑی کچھ ملنا ہے۔ ہیلو فرینڈس، میں ایس کے جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا لوکپریہ چینل ایس کے جے میڈیا۔ فرینڈس، ابھی آپ نے کچھ انٹرسٹنگ ویڈیو کلپس دیکھا۔ ویڈیو کے اس بھاگ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا میں کس طرح کی چرچا ہو رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا میں چل رہے اس بڑی چرچا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پاکستان اور باقی دنیا کو لے کر کس طرح کی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ آپ سے انورودھ ہے کہ پلیز ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جب بھی میں اگلا ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہلے مل جائے۔ تو اب دیر نہ کرتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں اس مزیدار اور ویری انٹرسٹنگ ویڈیو کا اگلا بھاگ۔ لوگ ہیں وہ بڑے بڑے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسٹیٹمنٹیں دینی ہیں، اور ٹی ایل پی والے سنا ہے وہ لاہور سے چل پڑے ہیں۔ آپ امیجن نہیں کر سکتی اسلام آباد میں کتنی پینک ہے۔ تو اتنی گندی سیاست ہے، اتنی گندی سیاست ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی۔ اتنی گندی سیاست جہاں پہ ایک لیڈر 5 سال ٹینیور نہیں پورا کر سکا، ایک بات۔ پھر جو 5 سال ٹینیور پورا کرتا ہے وہ کبھی دوبارہ پاور میں نہیں آیا۔ مودی جی کو دیکھیں نا، انڈیا میں آئے کہ نہیں پاور میں؟ ان کو سیکھنا چاہیے کچھ، لیکن یہ ایک اپنے دماغ میں نا بسا کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بھارت ہمارا دشمن ہے، ہم نے بھارت سے کوئی۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے تھے ہم انگلینڈ کی مثالیں دیتے تھے، جب سے حکومت میں آئے ہیں چائنا اور ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے ہماری؟ ہم نے 75 سال ہمیں مسلمان کرنے میں لگا دیے لوگوں نے۔ میں اپنے گھر میں کتنا مسلمان ہوں میرا اور میرا خدا جانتا ہے۔ مجھے تو سر سیدھی باتیں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی لائف آفٹر ڈیتھ میں، کیونکہ وہ تو سب مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو کچھ انہوں نے بتایا کچھ نہیں ہے، تو آپ لوگ تیاری کریں، حوریں آپ کو ملنی ہے، ہمیں تھوڑی کچھ۔ سیما صاحب، یہ لوگ بڑا یہ تحریک لبیک والوں کی آپ نے بات کی، یہ آ رہے ہیں دوبارہ سے کہ جی فرینچ امبیسڈر کو نکال دو، اور یہ وہ جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ یورپین کنٹری سے پہلے ہی تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کا اسلام اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب چائنا جو ہے وہ ایپل والوں سے کہہ کر اور اس میں سے قرآن کی ایپ جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے،
उनके सारे जितने भी उनकी मोबाइल्स हैं या ऐप जो भी एप्लीकेशंस उनकी आती है, जो गैजेट्स आते हैं, उसमें से कहते हैं जी ये कुरान की एप्लीकेशन निकाल दो, और निकाल भी देते हैं। उसके बाद जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जी मुझे तो हदीसों पे ही जो है वो बिलीव नहीं है और बहुत सी ऐसी हैं जिसके ऊपर शक है, उस वक्त ये तहरीक लब्बैक वाले ना तो और इमरान खान समेत कोई इन दोनों कंट्रीज को कुछ नहीं कहता, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, एम्बेसडर निकालने की बात नहीं होती, ये लोग जाके वहां पे धरने नहीं देते और खान साहब भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते। तो ये तो एक तरह का ड्रामा ही लगता है। और अभी भी जो तहरीक लब्बैक वाले आए हैं, आप जानते हैं पिछली 2 बार आए थे, पैसे लेके चले गए थे। अभी भी लग रहा है किसी ने इनको भेजा है, कोई ने जो है सपोर्ट है किसी तरफ से, तभी तो ये निकले हैं। और अक्सर आप जानते हैं कि इस तरह के लोग को कौन भेजता है और कैसे भेजा जाता है और क्यों भेजा जाता है। देखें, पहली बात तो यह है कि हमारा वजीर दाखिला सुना दुबई बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दुबई बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में धरने हो रहे हैं, इमरान खान साहब सऊदी अरब चले गए हैं, DGI अपॉइंट नहीं हुए नए जिनका नाम निकला हुआ है। इस वक्त लग रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो ऑटो पे चल रहा है। सारा मतलब सारे जो लोग हैं वो बड़े बड़े वो बाहर बैठे हुए हैं जिन्होंने स्टेटमेंटें देनी है, और TLP वाले सुना है वो लाहौर से चल पड़े। आप इमेजिन नहीं कर सकती इस्लामाबाद में कितनी पैनिक है। ये इतनी पैनिक है यहाँ पे, लोग घरों में काम करने वालियां नहीं आ रही, लोग स्कूलों में नहीं जा रहे, बच्चे कॉलेजों में नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटियां बंद है, फलां चीज बंद है, बाहर ना निकलिएगा, ये ना कीजिएगा, वो ना कीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी वेरी। और इमरान खान साहब का एक खास किस्म का नजरिया है। इमरान खान साहब बड़े खुश थे कि मैं 12 रबीउल अव्वल मना रहा हूँ, सारे पाकिस्तान में मैंने लाइटें लगवा दी हैं, तो ये TLP वाले नहीं आएंगे यहाँ पे, मैं सारा बरेलवी सुन्नी वोट मैं खींच लूंगा। उन्होंने क्या पाए ने थोड़ा साड़ा इस गल ना हो, वो हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे थे। हमारे लीडरान इतने डरपोक हैं, इतनी पावर के भूखे हैं ये लोग कि इनको अपना नजरिया भूल जाता है, और ये खौफ के लालच में जो है ना सारी तब्दीलियां करते रहते हैं। जब ये ऑपोजिशन में होते थे हम इंग्लैंड की मिसालें देते थे, जब से हुकूमत में आए हैं चाइना और रियासत मदीना की मिसालें देते हैं। इमरान खान साहब हॉक हो गए हैं। देखें, आप पॉपुलर वोट लेते हैं, पॉपुलर वोट लेके आप चंद एक लोगों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं, चंद एक लोगों के हाथों। हमने 75 साल हमें मुसलमान करने में लगा दिए लोगों ने। मैं अपने घर में कितना मुसलमान हूं मेरा और मेरा खुदा जानता है। आप कोई क्वालिफाई कर सकती हैं मुझे, या मैं आपको कह सकता हूं कि आरजू अच्छी मुसलमान है या नहीं। हम 75 साल में हम एक बात बताऊं, हमारी तरक्की ना करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और हमारे हम लोगों की जो सोच है ना वो वी लुक इनवर्ड, हम अंदर की तरफ देखते हैं। दुनिया ना वो बाहर की तरफ देखती है, हम अंदर की तरफ देखते हैं। जो लुक इनवर्ड है ना वो 2 वजहों से। एक तो ये कि हम एक दूसरे पर टैग लगाते रहते हैं, तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो और तुम अच्छे पाकिस्तानी नहीं हो। सारा टाइम लगे हुए हम एक दूसरे को गाली देते हुए, तुम जो काम किया है ना तुमने, तुम आप पाकिस्तानी नहीं रहे। ठीक है, आपके अंदर वो पाकिस्तानियत नहीं है जो आप जो है ना वो दूसरे के अंदर है। और वो कहता है जी मैं क्योंकि इस तरह का पाकिस्तानी, तुम्हें भी इस तरह का पाकिस्तानी होना चाहिए। एक मुसलमान है, TLP वाले हैं, वो कहते हैं नहीं तुम अच्छे मुसलमान नहीं, वो मुसलमान बनो जो हम कहते हैं। मतलब आओ सड़कों पे आओ, फ्रांस के से ताल्लुकात बहाल न करें, आओ फलां करें, आओ डमकान करें, आओ तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, और जालमो आओ जो मुसलमान बन जाओ। उससे पहले दूसरे मौलवी थे वो भी हमें मुसलमान बना रहे थे। तो सारा टाइम हम लोगों को मुसलमान बना रहे हैं और लोगों का इम्तिहान ले रहे हैं, क्या नेशनलिज्म, क्या मजहब। और इस जिन्होंने कहते हैं चीज साड़ी जोड़ा हड्डियां बह गई आग। भाई हर बंदा मुसलमान है यार, ये अल्लाह उसके रसूल का मसला है, वो किताब का मसला है, वो जानेगा जब वो उसकी जिंदगी। मुझे बात बताएं, जो लोग अपनी जिंदगी में बाकी कामों में इतने स्मार्ट है, उनको ये नहीं पता लाइफ आफ्टर डेथ के लिए भी मैंने कुछ अपनी प्रेपरेशन करनी है। आप बताएं आरजू साहबा, आप अपनी जिंदगी में इतनी स्मार्ट है, हर काम आप कर रही हैं। मैं अपनी जिंदगी में बड़ा अपने आप को 30 मार खान समझता हूँ कि मैं ये भी देख रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी, तो मुझे लाइफ आफ्टर डेथ का नहीं पता। मुझे तो सर सीधी बात है, कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आती लाइफ आफ्टर डेथ में, क्योंकि वो तो सब मर्दों के लिए है, औरतों के लिए तो कुछ उन्होंने बताया कुछ नहीं है। तो आप लोग तैयारी करें, पूरे आपको मिलनी है, हमें थोड़ी कुछ मिलना है। हम तो जो मर्जी करेंगे, हमें तो बस यही लाइफ है, हमने यहाँ पे जो मर्जी हम रज के जो करना चाहेंगे करेंगे। वहां पे तो आप लोगों ने तैयारी करनी सर, हमें तो 1% की वहां पे अट्रैक्शन नहीं रखी हुई आप लोगों ने।
देखिए ये मजहबी चीजें ज्यादा मुझे कोई पता नहीं है, आई कांट कमेंट। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये तहरीक लब्बैक वाले अगर आज यूरोपियन कंट्रीज ये अनाउंस कर दें कि जी हम जो है सबको वीजा दे रहे हैं यूरोप का और किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो ये सबके सब जो है वीजा की लाइन में लगे होंगे बजाय ये कहने के कि एम्बेसडर को निकाल दो। इतने दोगले लोग हैं हम। लेकिन साथ ही चीमा साहब आपने देखा होगा कि बांग्लादेश ने जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लिया, जो वहां पे उनके मंदिर वगैरह में नुकसान किया गया था और उनका की गवर्नमेंट ने ये तक कहा कि हम सेक्युलर होने जा रहे हैं। तो ये मुसलमान के बजाय अगर पहले इंसान बन जाए सारे तो ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत जो अभी है वो पहले कभी नहीं थी। तो आपको नहीं लगता कि इनको जो है इस वक्त बजाय इसके कि हर दूसरी कंट्री के साथ ये पंगे लेते फिर रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी इनकी एकदम फेल नजर आती है, हमें तकरीबन हर कंट्री नाराज है, साथ ही अपोजिशन के साथ इनके टाकरे चलते रहते हैं और इन्होंने इसके बजाय इकोनॉमी के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत होती है तो आप दुनिया में लोग आपकी बात को सुनते हैं, चाहे आप गलती क्यों ना कह रहे हो। देखिए बहुत सारे लोगों से हम मिलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि मुल्क के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके। देखिए आप तकरीबन 8,000 अरब इकट्ठा करते हैं। मैं ये बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों को थोड़ी समझ लगे मसला किधर है। मसला सीधा सा है, 8,000 अरब के खर्चे हैं, आमदन है आपकी 5,000 5,500, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला के 2,000, 3,000 का अरब का सालाना आपका डेफिसिट है। वो किसने पूरा करना है? वो इन्होंने पूरा करना है। पैसे इकट्ठे करें मुल्क से तो जारी बात है खर्चे काम करें, या तो खर्चे काम करें ना, खर्चे भी कम नहीं होते, इकोनॉमी के अंदर भी जान नहीं है, पैसा भी जनरेट नहीं हो रहा, ऊपर से आप कह रहे हैं हमने सोशल मीडिया पर पाबंदियां भी लगानी है। मैं देख रहा था, पता नहीं वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे कितना रेवेन्यू आ रहा है पाकिस्तान में। इनका दिल है कि इस पे पाबंदी लगाओ ताकि गेम गोल कर दो, जो जिसको जहां जहां से पैसा आता है उसको मारो। और फिर क्या है, इमरान खान साहब ने इकोनॉमी क्या चलानी थी बेचारे ने, तेल देखें कहां पे चला गया, 140 पर लीटर, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों को समझ नहीं आ रही किस तरह आप किसानों के पास चले जाएं, कोई जीरो जो है जिसे कहते हैं ना जीरो सपोर्ट है स्टेट की तरफ से। जिसके पास जितने पैसे हैं वो खा रहा है, जिसको जहां से मिल रहा है वो मारदार कर रहा है। ये जो चीजें हैं कि इमरान खान साहब ने इकोनॉमी क्या चलानी है, जिनके पास चौथा तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास मिनिस्टर ही कोई नहीं है, कोई बंदा इलेक्टेड बंदा उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी चलाने को तैयार नहीं है। तो इतनी गंदी सियासत है, इतनी गंदी सियासत है कि आप सोच नहीं सकती। इतनी गंदी सियासत जहां पे एक लीडर 5 साल टेन्योर नहीं पूरा कर सका, एक बात, फिर जो 5 साल टेन्योर पूरा करता है वो कभी दोबारा पावर में नहीं आया। मोदी जी को देखे ना, इंडिया में आए कि नहीं पावर में। और अभी जो वैक्सीन उन्होंने लगवाई है वो देखें, वो कितना इनको सीखना चाहिए कुछ, लेकिन ये एक अपने दिमाग में ना बसा के बैठे हुए कि नहीं भारत हमारा दुश्मन है, हमने भारत से कोई बात नहीं। अच्छा छोड़ दे, ना सीखे, बांग्लादेश से ही सीख ले। नहीं, देखिए अगर कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है तो 100 दफा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत हमें टफ टाइम देगा तो हमें भी टफ टाइम देना चाहिए। मैं तो इस चीज का मतलब वो क्या कहते हैं, आपको टफ होना चाहिए। लेकिन मैं जो मिसाल दे रहा हूं भारत की, देखिए हमारे उनकी 5 जगहों पे मसले होंगे, पर जहां पे 10 जगहों पे कनेक्टिविटी हो सकती है, वही राब्ता बढ़ सकता है, उस पे तो करो। 5 जगहों पे लड़ाई कर लेते हैं ना, पर वो जो बाकी 50-100 जगह है वहां पे तो राब्ता करो ना, वहां पे तो एंगेजमेंट करो। सो मैं इंडिया की जिस मिसाल इसलिए दे रहा हूं, बांग्लादेश में देख लें, कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी से स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है। लोग सब बंदे मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 97% मुसलमान है। उसको आपने 75 सालों से और मुसलमान कर रहे हैं, एक बंदे को 50-50 वाली मुसलमान करते हैं जो ऑलरेडी मुसलमान है। आपका किरदार अच्छा होगा, लोग खुद ही मुसलमान हो जाएंगे यार। लोग नबी पाक का किरदार देख के मुसलमान हुए थे, लोग वो जाहो जलाल और ताकत देख के मुसलमान नहीं हुए थे। जो किरदार होता है वो बड़ा अच्छा, हम अच्छे मुसलमान हो गए। और अच्छा मुसलमान कैसे होता है, इसलिए नहीं फरमाते कि गुर्बत की और कुफर की हदें मिलती हैं। इंसान जब गरीब होता है तो वो काफिर हो जाता है। लोगों को गरीब होने से बचाएं, तब वो मुसलमान अच्छे होंगे। लोगों को गरीब ना करें, ये लोगों को गरीब कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से, और फिर कहते हैं नहीं मुसलमान रहो, मुसलमान रहो। तो ऐसे तो नहीं होगा।